I'm going to start your class. Sure. Okay. I'll just share from the Oh. हेलो. गुड इवनिंग सर. स्क्रीन दिख रहा है बच्चे? यस सर. पूरा? यस सर. गुड इवनिंग बेटा. ये सब क्या आ गया? ओके. Okay. Now we are going to start our class. I have been told that your vector chapter is going on. Is it right or wrong? Hello. Yes, sir. Which chapter you have been studied? Sir, we are currently studying vector chapter. Vector. In vector, what are the things you have been taught? Can you explain? In vector, which topics have been taught to you all? Or I have to start Sir, from we have been taught till equation of line. equation of lines? That is in So 3D. we were doing 3D. Vectors, and now we are studying 3D till equation of a line, image Okay, of a point from a line. okay. Means That was equation the of. last topic we did. Okay, but I have been told that you have to study in vector. Mm, some doubts you have in vector? No, sir. No any doubt? Okay. Can I ask some question in vector? Then I will start your 3D plane. Yes, sir, sure. Okay. Basic things I'm going to ask you, because which have the thing which is needed in 3D, I want to know from you. Okay. But one thing I'm not sure that why sir told me you have to teach vector. If vector is finished and in 3D you have almost half part has been taught. No matter. Some question I am giving you, please solve it, and after that I will teach you the plane. Okay. वेक्टर 3D दोनों टॉपिक में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को चलिए क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछ लूं वेक्टर्स
drawn from a origin O to the points A, B, and C, to the points A, B, and C are respectively A, comma, vector A, comma, vector B, and 4A minus 3B. 4A minus 3B. Okay. Find AC and BC. Find AC and BC. Please try it. Sir, AC is 3A minus 3B Hmm. and BC is 4A minus 4B. गुड, सही है। मतलब इस तरह की बेसिक्स आपको पता है, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ। बताना पड़ेगा इसको बच्चे, क्या इसको फिर से बताना पड़ेगा? मैं बताऊं इसको? No, कैन sir. आई एक्सप्लेन? No, sir. हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा। ओके, ठीक है। तब तो इस तरह के क्वेश्चन आपको। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़े हो आप लोग? लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। No, sir. It's a basic. Any vector can be written as I plus j plus k, means xi plus yj plus zk, like this. Means this vector may be linearly independent or linearly dependent because it's said to be linear combination of vectors. A equals to xi plus yj plus zk is if written, then particularly everyone is a vector component and their sum is said to be linear combination of vectors. Okay, जैसे आप कोप्लेनरिटी का केस लेते हो, आप क्या लिखते हो? A इक्वल्स टू लेमडा बी प्लस म्यू सी, इस तरह से लिखते हो। ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो ये भी क्या है? एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हो गया। या आप कहते हो A इक्वल्स टू लेमडा बी, एक वेक्टर्स A एंड B आर कोलिनियर। तो इस तरह की चीजें हैं जिसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। इसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है बच्चे? तो क्या है, यहाँ जैसे लिखा गया, अब ये जैसे 3 वेक्टर्स का है, इस तरह से हो सकता है n वेक्टर्स का सम दिया जाए मुझे। ठीक है, k1 k2 k3 सब पर वेक्टर लगाते हुए चला गया। इस तरह से जो सम किया गया है, ये सम आपका n वेक्टर्स के लिए भी पॉसिबल है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब क्या है कि इसके साथ देख रहे हो सम कांस्टेंट लगे हुए हैं, है क्या? कि मान लो कि k1 प्लस k2 प्लस k3 डॉट 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 kn ले लिया गया इक्वल्स टू 0। मतलब वेक्टर कॉम्बिनेशन का सम जो आ रहा है वो 0 है। यहाँ भी आप इसको कर सकते हो, a माइनस लेमडा बी माइनस म्यू सी इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। ठीक इसी तरह से n वेक्टर के लिए जहाँ k1 k2 k3 जो है आपका स्केलर्स है, ठीक है, जबकि a1 a2 a3 जो है आपका वेक्टर फॉर्म है, नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है बच्चे? तो क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा।
ये जो इक्वेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे इफ every relation of the type like k1 equals to k2 equals to dot 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 kn equals to 0। मतलब कहने का ये है कि जितने भी इसमें कांस्टेंट आप देख रहे हो, अगर कांस्टेंट आपका जो है ये सेपरेटली जीरो होगा तो इसका सम जो होगा निश्चित रूप से जीरो हो जाएगा, तो उस स्थिति में लिनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, क्योंकि वेक्टर से इसका कोई संबंध ही नहीं रहा। ठीक है बच्चे, लेकिन यही स्थिति रहे और इसका सम जीरो हो, बट ये जितने भी स्केलर्स हैं ये सारे स्केलर्स जीरो ना हो, कुछ हो जाए कुछ ना हो। समझ गए? ये लाइन जो लिखा गया है इज एक मिनट, इज linearly dependent if k1 k2 k3 dot 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 kn are not all zero। ओके, और यही सेम इक्वेशन जो है, यही आपका सेम इक्वेशन जो है, ये क्या होगा? लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इज linearly independent if k1 equals to k2 equals to k3 equals to dot 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 kn equals to 0। ठीक है, देन अगर ये सारे जीरो हो जाएंगे तो इनका सम जो है अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका लिनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। अब इस पर बेस्ड प्रॉपर्टी जानते हो, दो कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा क्या होंगे? लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब जैसे क्या है कि a इक्वल टू लेमडा बी, ये दो अलग अलग वेक्टर हैं, a माइनस लेमडा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो होगा कि नहीं? तो कम से कम एक को नॉन जीरो होना पड़ेगा। इसी तरह से दो नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स जो होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स ये क्या होंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स जो हैं ये आपका लिनियरली डिपेंडेंट होगा, जबकि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये तो दो और तीन के लिए बताया आपको। मोर देन थ्री वेक्टर्स अगर आप लेते हो ये ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, इस पर का क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। टैब मेरे बैठ नहीं पा रहा है ढंग से। पहले देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है if ABC are three non null vectors, if ABC are
3 non-null vectors. Okay, such that any two of them are non-collinear. If A plus B is collinear with C, if A plus B is collinear with C and BC B plus C is collinear with A, is collinear with A, मतलब vector A, then find A plus B plus C, then find वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C। यहाँ आपको गौर करना है, देखिए कुछ वेक्टर्स जो है नॉन कोलिनियर है, जबकि कुछ वेक्टर्स अदर वेक्टर के साथ कोलिनियर हैं। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आपको इसमें। ठीक है बच्चे, थोड़ा ट्राई कीजिए आप। होगा बच्चे? हेलो, कैन इट बी सॉल्व्ड? यस सर। क्या है? सर कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ।
Sir, 0. गुड से देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC are three vectors, non-null vectors, such that any of two are non-collinear. मतलब कोई भी दो जो है नॉन कोलिनियर है, ABC में कोई दो का पेयर लेते हैं, चाहे वो AB ले लें या BC ले लें या AC ले लें. लेकिन फिर कह रहा है इफ A plus B is collinear with C, इसका मतलब क्या हुआ? अगर A plus B collinear with C है तो आप लिख सकते हो A plus B equals to lambda C. लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इक्वेशन फर्स्ट को. Yes, sir. और फिर क्या कह रहा है कि B plus C is collinear with A. B plus C equal to lambda A. Here lambda comes to be -1. Put in 1, A plus B plus C equal to 0. B plus C equals to mu A, not lambda. It's equation second. Okay. Now, from equation first, you can find the value of A. A equals to what? A Lambda C minus B. lambda C minus B. Okay, just put it into this one. So B plus C equals Shit. to mu into lambda C minus B. Okay, you can write it. Now it can be written as B plus C equals to mu into lambda into C minus mu B. Okay, so now B plus mu B plus C minus mu lambda C equals to 0. Means you can write it 1 plus mu into B plus 1 minus mu lambda into C equals to 0. Okay. But you know B and C are not collinear. Means B and C are non-collinear. Means always two non-collinear vectors are linearly independent. If since B and C are non-collinear, so B and C are linearly independent. और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो उस स्थिति में इसके कांस्टेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? 0 के बराबर हो जाए. Hence 1 plus mu equals to 0. Hence mu equals to -1. And 1 minus mu lambda equals to 0. Means lambda equals to again -1, because you will put it -1 means plus lambda equals to -1. Okay. Now lambda 1 and lambda 2 you can put it any equation. Suppose in equation first you put lambda equals to -1 from first equation. From equation first, A plus B equals to -C, because lambda is -1. Hence A plus B plus C equals to 0. बच्चे बात समझ में आई है? हेलो. Sir, why did you take B and C as collinear? B and C is non-collinear. See here, B and C are non-collinear. And non-collinear. Yes, sir, non-collinear. Because a question here, question is given any two of them are non-collinear. ABC are three non-null vectors such that any two of them are non-collinear. So it comes in form of B and C. After solving equation first and second, your equation comes in form of vector B and vector C. That is why. And vector B and vector C are non-collinear. That is why they are said to be linearly independent. And if these are independent, then its coefficient must be
separately equals to 0. Okay. Hello. Hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Got you. Okay. Last question, one question I am giving you. After that, I will discuss on plan. Question is, one minute. For any vector A, for any vector A, okay, find the value of I cross A cross I plus J cross A cross K plus, sorry, J cross A cross J, just write it J, okay, plus K cross A cross K, plus I cap plus j cap plus k cap cross a vector. इसका I cross A cross I plus J cross A cross J plus K cross A cross K. That's the expression. okay. A vector minus I into A vector dot I cap plus J into A vector dot J cap plus K into A vector dot K cap. Correct it, just
The 2A vector. 2A, good, सही है. Yes, sir. See boys, it's a vector triple product, okay? So you can write it I dot I into A. No, I dot I into A minus I dot A into I dot A into I plus J dot J into J dot J into A minus J dot A into J, okay, plus K dot K into A minus K dot A into K, okay. I dot I is 1, so its value is A minus J dot J also 1, so its value also 1. K dot K into A also 1, so it's A. Now minus is taken common as common. I dot A into I cap plus J dot A into J plus K dot A into K. Okay. Just find one, this the example, I dot A into I. Suppose A equals to Direction ratio x of हो जाएगा. I along x. x हो जाएगा अगर a हाँ इक्वल्स टू एक्स हाँ आई हाँ प्लस. बिल्कुल सही. ये अगर मान लो ये एक मिनट और भी बच्चों को समझने दो. A1I A2J प्लस A3K अगर लिखा जा रहा है तो मतलब I डॉट A तो A1 ही ना होगा. A1 इंटू आई हो जाएगा. I डॉट A इक्वल्स टू व्हाट? ओनली A1. I dot J equals to what? Only A2, and J is outside, so you can write it 3A minus A1I plus A2J plus A3K. No, because it's A1I. A1I into I means A1, and A1 into this I is A1I. Similarly, A2J, similarly A3K means 3A minus A, that is equals to 2A. ठीक है बच्चे. आप यहाँ बस I डॉट ए निकालो, पता चल जाएगा. I डॉट ए जो आ रहा है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? A1 आ रहा है, और इसके साथ ही I लगा है. आप कह सकते हो A1 इंटू आई इज इक्वल टू A1I. ओके बॉयज, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो देखें आप लोग का लॉजिकली आप कितना स्ट्रांग हो. Find the unit vector. Find the unit vector which is orthogonal to the vector which is orthogonal to the vector vector 3I plus 2J plus 6K. Find the unit vector which is orthogonal to the vector 3I plus 2J plus 6K and is coplanar with the vectors
2i plus j plus k, 2i plus j plus k, and I minus j minus k, I minus j plus k, बस जिसकी मुझे जरूरत था मैं बस वो पूछ लिया। Sir, 3 by root 10 j cap minus 1 upon root 10 k cap. गुड, सही है। Let it be solved to others also. Sir, please wait. What? Wait, sir. Okay, okay. I'm waiting. Sir, minus 4 I cap plus 19 k cap plus 19 j cap upon root 738. आपका कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखो मेरा मकसद तो सिर्फ था कि इसका मीनिंग क्या है ये आप लोग समझ लें। यहाँ देखो कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर दिस वन एंड इज कोप्लेनर विथ द वेक्टर दिस एंड दिस according to definition of vector triple product. According to the definition of vector triple product, if a vector is orthogonal with given vector and is coplanar with two other vectors, then this is clear that the vector product is being done among these three vectors. Okay,
मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई वेक्टर अगर मान लो एक वेक्टर के साथ सर ऑर्थोगोनल है 1 by और root 2 j cap plus 1 by root 2 k cap. √10 शायद है। सर मेरा रूट 2 आ रहा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलिए सुनिए, तो मतलब क्या है, अगर मान लो इसको ए कह देते हो, इसको बी कहते हो, इसको सी कहते हो, तो ए इक्वल टू हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k, ओके। बी इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k and c equals to I minus j plus k. So we have to find A cross B cross C. Okay. So we have to unit vector means what? Its magnitude and by their vector form. So you can find it like this, equals to A dot C into B minus A डॉट बी इंटू सी। अब देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आसान है, क्या हो जाएगा, ए डॉट सी मीन्स 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू -1 -2 हो गया, प्लस 6 इंटू 1 6 हो गया, इंटू बी माइनस ए डॉट बी मीन्स 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6, मतलब 6 6 2 14 हो गया, 14c। और इधर ये क्या आ गया, 9 माइनस 2 7b, 7b minus 14c. So 7 is taken as common. In place of b, you can write it 2i plus j plus k. 2i plus j plus k. Okay. Minus 2c. 2c means what? 2i plus 2j minus 2k. Okay. 2i cancelled out, remaining is 7 j plus 2j means 3j, k minus 2k means minus k. Now I have to find its magnitude only, no, and a cap is, we know, a cap is what, vector a by mod of a। ठीक है Sir, बच्चे? please shift screen downwards. Sir, please scroll page upwards. ओके ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्लेन। Sir, हाँ I have बोलिए। a doubt. Sir, in the previous question we did this one, हम्म orthogonal one. हम्म Couldn't we do that? The vector which is coplanar with 2i plus with b and c, then we can write as a plus lambda b. ए प्लस लेमडा प्लस म्यू सी। अगर दो वेक्टर के साथ है तो आप क्या लोगे, ए इक्वल टू लेमडा बी प्लस म्यू सी। No, sir. I'm saying हम्म that हम्म if a vector d is in the हम्म plane of b and c, then we can write d as b plus lambda c. I couldn't understand what you want to say actually. If a vector is in the plane of b अगेन and c, आप फिर से बोलो हाँ। if a vector is in plane of b and c, अच्छा then that vector can be written as b vector plus lambda times c vectors, isn't it? हाँ हाँ, मतलब And then अगर वो from देखो, there, नहीं आपकी बात मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि कोई वेक्टर ए है
जो बी और सी के प्लेन में लाई कर रहा है, यही ना? यस सर। इसका मतलब तो ये तीनों वेक्टर को प्लेनर हो गए ना। नहीं सर, ये हो गया स्केलर मैं टू इस ए वेक्टर की बात नहीं कर रहा सर, कोई जो हमें निकालना है ना वेक्टर, उसकी बात हाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ वो बोलिए। अगर इन दोनों के साथ प्लेन में है हम्म, तो मैं उस वेक्टर को लिख सकता हूँ बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। बी वेक्टर प्लस लेमडा साइन सी। इसका मतलब बी और सी को आप कोलिनियर कर रहे हो ना, को प्लेनर कहाँ साबित कर रहे हो? सर बी और सी कोलिनियर क्यों हो गए? जब आप सीधा कोई बी इक्वल टू लेमडा सी यही कहना चाह रहे हैं ना? बी प्लस लैम्डा सी, ये कुल मिला के क्या है? बी प्लस लेमडा ये सी कुल की। मिला के जो हमारा वेक्टर निकालना है वो है। तो फिर ऑर्थोगोनल का क्या होगा? ऑर्थोगोनल के लिए जो ये जो वेक्टर आया इसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे अगर हम ए वेक्टर से, तो वहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा। हाँ मिलेगा। और लैम्डा फाइंड आउट करके जो हमने एक बी प्लस लैम्डा सी रखी है उसमें निकाल रख पुट के, करोगे। हाँ जी सर वही पुट करा मैंने, 1/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप आया तब मेरा। कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, आप एक बार Sir, कैलकुलेशन चेक कर लेना। sir, I too ओके सर। also used the same approach and I हम्म, got the answer using the same वही तो, approach. क्योंकि जो चीज आप वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। Yes, sir. मुझे पहले लगा कि कोप्लेनर क्या Because क्या वो कर रहा है वो, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ए के साथ वो रिलेट कर दिया, लेमडा की वैल्यू निकाल लिया, फिर वहां पुट किया और उसके बाद आया है वैल्यू। सही है वो भी मेथड। yes, sir. ओके सर। कैलकुलेशन कहीं दिक्कत हुई होगी आपका कोई। हाँ जी सर ये हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़े हम। यस सर यस। अच्छा, प्लेन में भी कुछ पढ़े हो, पहले बता दो। प्लेन में सर नॉट येट। अच्छा, नॉट येट, ओके। देखो, प्लेन के बारे में कहा गया है जस्ट ए सरफेस, प्लेन इज ए सरफेस। तो पाई कह लो, एक सरफेस पाई है जिस पर अगर कोई पॉइंट लाइक करे ना, जैसे मान लो हम खींचते हैं, मान लो इस तरह से एक सरफेस ले लिए, इसका नाम पाई हमने रख दिया। अब इस पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करे और लाइन पर कोई दो पॉइंट ले, दो पॉइंट हम ले रहे हैं, ये दो पॉइंट अगर लाइन पर लाई कर रहा है तो निश्चित रूप से इस प्लेन पर भी लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लेंगे, जो भी पॉइंट लेंगे वो प्लेन पर लाई होना चाहिए, तभी इस पाई को हम एक प्लेन कर सकते हैं। कुल मिला के ये है। ठीक है बच्चे, ऐसे डेफिनेशन वाइज तो प्लेन और स्ट्रेट लाइन में बहुत अलग अलग चीजें दी गई है, लेकिन जो कॉमन डेफिनेशन है प्लेन का वो यही है कि स्पेस में एक ऐसा सरफेस, ठीक है, जिस पर अगर दो पॉइंट लिए जाए तो वो दोनों पॉइंट उस पर खींचे गए लाइन पर भी लाई होना चाहिए, देन पाई इज सेड टू बी प्लेन। बात समझ में आई बात? हेलो। यस सर। इसी के हिसाब से आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है निकाला गया है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म जिसको आप कहते हो। अब जैसे क्या है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये आपका प्लेन है, ऑरिजिन आपका यहाँ है। ओके, ये क्या है, ये आपका थोड़ा देर के लिए मान लो ऑरिजिन है। तो क्या है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब ही हो गया कि डायरेक्शन जो होगा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, है कि नहीं? अब कोई पॉइंट यहाँ पर लिया जाए, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पर लिया, ये हमेशा क्या होगा, इसके साथ नॉर्मल होगा। कोई पॉइंट आप ले लो यहाँ पर, इसको अगर हम इससे ज्वाइन करते हैं, ये क्या है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसलिए इसको आर कह देते हो आप, क्योंकि आप इसी का लोकस निकालते हो। और एक ऐसा वेक्टर लिया गया है जिसका ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डी यूनिट है, मतलब यहाँ जो एक पॉइंट लिया गया है, ये तो आपका डायरेक्शन वाइज एन कैप है, डायरेक्शन वाइज इसको क्या कह रहे हो, एन कैप कह रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो बनेगा, मान लो ये ओ है, ये थोड़ा देर के लिए ए कह देते हैं, इसको आप बी कह दो, तो कुल मिला के यही बन गया। ये तो आपका आर वेक्टर हो गया,
ये आपका, ये क्या है कि ये जो लाइन आप देख रहे हो ओ ए, दैट इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, मीन्स आप इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डी इंटू एन कैप। ठीक है बच्चे, चूंकि ऑरिजिन से ए यूनिट के डिस्टेंस पर है। मेनली इसको जो डिफाइन करोगे वो इस तरीके से है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन नॉर्मल टू ए यूनिट वेक्टर एन एंड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, प्लेन में है इसका, अगर ये हम लोग देखें, इसको एक्सप्लेन करें, वेक्टर फॉर्म जो है, वेक्टर फॉर्म जो है वो क्या है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन normal to the unit vector and at a d distance, at a distance d from the origin. Okay, so see here, OA equals to what? OA equals to, you can say, d into n cap. Okay, OA equals to d into n cap because its magnitude is now d and direction ratio is n. And OB equals to r. OB equals to r. OA direction, this one is AB, suppose. So from triangle rule, you can say OA plus AB equals to OB. Okay, means AB equals to what? AB equals to OB minus OA. OB means R minus OA means D into n cap. Okay. Now see from figure you can say AB is perpendicular, yeah, OA is perpendicular to AB. Okay, OA is perpendicular to AB, hence OA dot AB equals to 0. Okay. Now if OA dot AB is 0, it means D into n cap dot R minus D n cap, R minus D n cap equals to 0. Okay. Now you can write it. D n cap into R minus dn into dn, completely it will be d square n, you can say, या d square से होगा, ये d कॉमन लेके उस तरफ भेज दो, क्या मिल गया, r डॉट n cap minus d equals to 0, hence r dot n cap equals to d. Okay, which is vector form of a plane. Okay, now you can write it here, n is a unit vector, you can write it r dot vector n by mod of n also equals to d. So you can say r dot n equals to d into mod of n. Okay, which is written as r dot n equals to k, because d is scalar and cap is also scalar, so it's also a equation of plane in vector form. Now you can change it in Cartesian form also. Okay, means r is a variable point, so you can take r equals to, let r equals to xi plus yj plus zk. Okay, and n equals to, n is a vector whose direction ratio is important, means you can take it as ai plus bj plus ck. Okay, so r dot n means
xi plus yj plus zk dot ai plus bj plus ck equals to k. So it becomes ax plus by plus cz equals to k. Okay, which is Cartesian equation of plane, which is Cartesian equation of plane. ठीक है बच्चों? And in general equation of plane, it is written as ax plus by plus cz plus d equals to 0. Okay. Can we scroll it? No, sir, we are writing Hello. down. Okay, okay. Please write down. आप लोग को समझ में आई बात? Yes, sir. Okay. But please scroll down. Okay. Now question will be example I am taking means in general form. Hence you can say in general form. General form equation of plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0. ठीक है बच्चे? Now question is question or example you can say find the vector equation of plane. Find the vector equation of plane which is at a distance of which is at a distance of 8 units from the origin. From the origin and normal to the vector and normal to the vector 2i plus j plus 2k. Okay, 2i plus j plus 2k. यहाँ देखो तो d इक्वल टू गिवन है, आंसर आप दे सकते हो आसानी से. d इक्वल टू क्या है 8 यूनिट और वेक्टर दे दिया है, मतलब n वेक्टर दे दिया है. ये क्या दे दिया है 2i plus j
प्लस 2k। इससे आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i प्लस j प्लस 2k बाय रूट ओवर। 3। अरे बाबा, इतना जोर से क्यों बोलते हो? डर जाते हैं। सॉरी सर। फिर से डरा दिया। ओके, कोई बात नहीं है। एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 4 5 9, नहीं मतलब 1/3 यही आएगा ना। 2i प्लस j प्लस 2k। ओके, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r डॉट 2i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू, ये 1/3 राइट साइड भेज दो तो 3 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे, बात समझ में आई आप लोग को? हेलो। यस सर, आ गई। अब जानते हो सबसे अच्छी चीज प्लेन के साथ क्या है? कि जो आप 2D में स्ट्रेट लाइन को देखे थे वो सारा वो फॉर्मूला 3D में स्ट्रेट। प्लेन की एक्सटेंशन होती है। हाँ, बस जेड को जोड़ते चले जाओ, पूरा फॉर्मूला आपको यही आ जाता है। देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आया है ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह है कि नहीं? सिर्फ आपने सी जेड ऐड कर दिया है कि नहीं? तो वेक्टर 3D तो इजी चैप्टर है ही, बस इसमें फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा होता है। आप लोग ध्यान से समझने के बावजूद आपको फॉर्मूला कुछ याद रखने पड़ते हैं। दूसरा है वन पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म। दूसरा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, वन पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म। वन पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म मीन्स इसमें अब क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको नहीं देगा, अब एक पॉइंट दे दिया आपको। ठीक है, मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, equation of plane passing through a point having position vector a, and normal to the vector n, and normal to the vector n, ठीक है। मतलब फिर से आपको उसी तरह से है। आप मान लो इस तरीके का एक प्लेन ले लिए, यहाँ भी आपका एक ओरिजिन लिया गया, वो मान लो इसको, ठीक है। अब इस पर कोई फिक्स पॉइंट है, मान लो अगर इसी को आप फिक्स पॉइंट कह दो, ए कह दो, और ये आपका वेरिएबल पॉइंट एक कंसीडर कर लें, वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर लें, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये मान लो ओ है, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा? ए ही होगा। पी भी ऑफ ओ ए इक्वल टू ए हो जाएगा। ओ बी जो है ये आर है, पी भी ऑफ ओ बी इक्वल टू वेक्टर आर है, और पी भी ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? पी भी ऑफ ए बी आपका क्या हो जाएगा? आर माइनस ए हो जाएगा, आर माइनस ए। ठीक है बच्चे। अब क्या है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल फॉर्म है। इसका मतलब है कि ओ ए डॉट ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, हेंस आर माइनस ए डॉट एन
अरे ये तो परपेंडिकुलर था कि ये n होगा ना, हट ये आपका n वेक्टर है, ये इस पर कोई पॉइंट a है, ठीक है, ये ए बी सी है, बात तो एक ही हो गया, n वेक्टर है ये और इस पर कोई पॉइंट है n, तो भी वही चीज हो गया। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर a है, इसको भी ज्वाइन कर दो बस, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी आपका वही होगा, बी माइनस ए होगा, क्योंकि जो बी सी का होगा वही ए बी का भी होगा। तो आर माइनस ए हो गया ए बी और एन हो गया ओ ए, यहाँ गलत कर दिया मैं। ठीक है बच्चे, इसको मिटा लेना, ये क्या है, एन वेक्टर है आपका, ओ बी का आर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू आर माइनस ए हो गया, बिल्कुल सही, इसलिए आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, where r equals to xi plus yj plus zk, ठीक है बच्चे, a equals to, it's a point, so its coordinate will be like this, x1i plus y1j plus z1k, okay, and n equals to, it gives direction ratio, so n equals to ai plus bj plus ck, okay. Now after putting the value of r, a and n, we get Cartesian equation of plane. Cartesian equation of plane passing through a fixed point is a into x minus x1। जब आप ये वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ये आ जाता है आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? हेलो ये हेलो, सर आ रही है तो कुछ नहीं, आप देखो, आप पढ़ते थे 2D में क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ते थे कि नहीं? और क्या लिखते थे, y माइनस वाई वन इक्व टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वो m की वैल्यू क्या होती थी, अगर जनरल फॉर्म ले लो तो m की वैल्यू होती थी माइनस ए बाई बी। ठीक है, वो वैल्यू आप पुट कर दो तो देखो ये a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इक्व टू 0 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए क्वेश्चन कर लीजिए इस पर भी। लिख लीजिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ाऊंगा। लिख लिया सर। चलो लिखो क्वेश्चन, इसको आपको करना है।
Find the equation of the plane. Find the equation of the plane passing through the point two minus 1 3 and orthogonal with the vector three I minus j plus 2k equals to, ठीक है। Sir, do we have to find the vector equation or the Cartesian equation or both? Any one you can find. Sir, r minus 2I minus j plus 3k dot 3I minus j plus 2k equal to 0. R minus 2I plus j minus 3k. 2I minus j plus 3k हाँ सही है। dot 3I minus j plus 2k equal to 0. ओके सही है। ये कुछ नहीं है, आप चाहो तो पॉइंट फॉर्म में इसको कर लो या इस फॉर्म में कर लो। मान लो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 2I माइनस जे प्लस 3k और n इक्वल टू आपको दे दिया है 3I माइनस जे प्लस 2k। बताओ क्या होगा, हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो जाएगा r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 और वैल्यू इसमें पुट कर दो, हो गया आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा मैं इनडायरेक्ट देता हूँ क्वेश्चन। reduce the equation 2x plus 3y plus 6z minus 14 equals to 0 in normal form and find the length of
the length of perpendicular, find the length of perpendicular from the origin. Yeah. Sir, R vector minus 2 by 7 I cap minus 3 देखो by इसमें मेरी बात सुनो, ये देखो आपको दिया है कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसका जो नॉर्मल फॉर्म निकालोगे वो भी आप कार्टेशियन फॉर्म में ही निकालोगे। नॉर्मल फॉर्म में क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्व टू पी, ऐसा कुछ बताया था? यस सर। उस फॉर्म से निकाल लो ना। सर उससे नॉर्मल भी निकल गया, डी भी निकल गया, लेकिन फिर कार्टेशियन फॉर्म तो ऑलरेडी है ही, फिर निकालना क्या है? कार्टेशियन फॉर्म, और देखो ये है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्व टू 0, और नॉर्मल फॉर्म जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्व टू पी। यहाँ वो पी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या जो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कहते हो वो है वो, क्योंकि देख रहे हो वो भी तो परपेंडिकुलर ही है। सर तो पता कहाँ है? 14 को राइट साइड ले जाके 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, वही है इक्वेशन। हाँ जी, मतलब नहीं, देखो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आप निकाल लेते हैं डायरेक्ट, जैसे आपको पता है 2D में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर क्या हो जाता है परपेंडिकुलर 7 से डिस्टेंस? डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, 2 गलत हो हाँ, रहा था। 7 से डिवाइड कर दो, हो गया 2x बाई 7। चूंकि देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आप निकालोगे तो ये मिल जाएगा आपका, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा, तो मतलब क्या हो गया 14 बाय रूट ओवर 2 स्क्वायर 4 9 36, कितना हो जाएगा 36 9 45 4 49 मीन्स 7 आ गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डायरेक्ट आ गया आपका 2, आया कि नहीं? अब क्या है कि RHS में 2 रहना चाहिए बस, ये हो जाएगा 2x बाई 7 प्लस 3y बाई 7 प्लस 6z बाई 7 इक्व टू 2। ऐसा लिखेंगे कि नहीं बच्चों? लो, यस सर, बात समझ में आए? यस सर। यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे बढ़ें? श्योर सर। चलिए, इसी पर बेस्ड आपको बताया है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ प्लेन in intersect form having intersect length on x, y and z axis are A, B and C respectively. ओके, मीन्स क्या है, मान लो ये इस तरीके का प्लेन है,
ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। इंटरसेप्ट लेंथ यहाँ तक लिया गया ए, इसका ले लिया गया बी और इसका ले लिया गया सी। इनको आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये प्लेन बन जाता है जो कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। बच्चे, so the equation is similar like 2D x by a plus y by b plus z by c equals to 1। ठीक है बच्चे, इस तरीके से लिखा जाता है। अब 3D में क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, सबको आप उसी तरीके से लेते हो। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट समझ ही रहे हो, ये सब तो इजी है, इतने समझ में। एक और चीज बता दें, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन form which passes through three non-collinear points x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3 is क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ x minus x1, x2 minus x1, x3 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखने में तो बड़ा लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन जैसे ये वैल्यू पुट करते हो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 की, तब ये इजी हो जाता है और आसानी से निकाल लो। तो इसको याद रखना भी आसान है, हर एक टर्म से आप x1 y1 z1 माइनस कर दो, हो गया। बच्चे बात समझ में आ रही है? अरे सर, तो मुझे लगता है चलिए इस पर क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी सबसे पहले करना, उसके बाद आप आरडी शर्मा जाना, फिर आप कोई कंप्लेन का बुक। और सबसे अच्छी चीज 3D का क्या है, आपका आरडी शर्मा सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या कोई भी बुक हो, क्वेश्चन का लेवल सबका सब बुक में एक जैसा, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो तो ठीक है। बस अगर फॉर्मूला याद है या मान लो इमेजिनेशन 3D में कर पाते हो, एक आध वीडियो आप देखना जरूर। 3D का क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाता है वहां पर आपको स्पष्ट दिखेगा कि किस तरह से लाइन ड्रॉ हो रहा है, कैसे नॉर्मल बन रहा है, प्लेन पर कैसे पॉइंट्स लिए जा रहे हैं, तो पॉइंट्स कैसे कोप्लेनर है। आप किसी भी जी तिवानी का जैसे है ना, जो सिंगेज के राइटर हैं, उनका 3D का थोड़ा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, हेलो, ओके सर। आप प्लीज उनका एक वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा कि 3D को कैसे इमेजिन किया जाता है, आपको समझ। अब देखो सामने तो हो नहीं कि मैं आपको दिखाऊं हाथ से या किसी तरीके से कि कैसे ये 3D में आ रहा है। सर वीडियो ऑन करके दिखा दो। वीडियो वो मुझे नहीं करने आता, मैं अभी सीख रहा हूँ जी ये। नहीं सर, आपका कैमरा ऑन करके आप पेन वगैरह से दिखा सकते हैं ना। क्या कैमरा ऑन करके, अच्छा चलो वो भी मैं सीख लूंगा, तब मैं आपके सामने करके दिखा दूंगा। ओके नहीं सर। लेकिन उसमें ज्यादा क्लियर है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर पर लेते हुए किया है ना आपको। हाँ जी सर, देखी थी मतलब मैंने, देखे अन थे। अकेडमी की देखी थी। अन अकेडमी का मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ जो स्पेशल, मैं कम से कम 3 साल पहले देखा था, वो बड़ा सुंदर, मतलब क्वेश्चन को भी सॉल्व किए हैं ना उसको ले लेके, आपको और अच्छा लगेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टिल देन गुड बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास गुड अगेन। नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। I hope you will understand what I am teaching you today. यस सर। Okay.
थैंक यू सर। Okay, thank you all of you.